Welcome students. In today's lecture we are starting the part 3 of the our electrochemistry chapter, and the part 3 is electrical conduction. And now today's lecture is the most important lecture for MCQ, for theory, and the for fundamental of the electrical conduction. Okay, main for MCQ it is most important. Okay, so here one liner questions, most of the questions are one liner, means for 1 mark or MCQ it is the most important. Okay, so for MCQ as well as for theory and for fundamentals it is the most important. First of all, electrical conduction. So to study the electrical conduction, first of all we know that any substance has total 3 main physical states. Number 1, solid. Number 2, liquid, and number 3, gas. Only solid and liquid can conduct the electricity. Now, which type of solids can conduct electricity? So, generally metals and alloys can conduct electricity. In liquid, aqueous or molten electrolyte, aqueous solution or molten electrolyte can conduct electricity, and gas cannot conduct electricity. Okay, cannot conduct electricity. Now, metals and alloys, why do they conduct the electricity? And the reason for it is they have free electrons. Most important things, because of having free electrons, solid can conduct electricity, means metals and alloys can conduct electricity. That's why this type of electrical conduction is known as electroconductance or electronic conduction. Now, aqueous solution and molten electrolyte can conduct electricity. Why? Because they are having the ions into the solutions. So, such conduction is known as ionic conduction. Okay, तो चलो इतने तो theory clear. Which type of substances can conduct electricity? Only solid and liquid. Solid में generally कौन electricity conduct कर सकता है? Metals and alloys. Which type of liquids can conduct electricity? Having a aqueous solution or molten electrolyte. अब non electrolyte cannot conduct electricity. We know that. Non electrolyte के examples कौन कौन से हैं? आपको पता होगा, यूरिया, then sugar, that is sucrose, glucose, then glycerine. These substances cannot conduct electricity because they do not have the ions. Means due to presence of ions, liquids can conduct electricity. So such conduction is known as ionic conduction. Which type of solids can conduct electricity? Answer is metals and alloys. Why? Because they have free electrons. So such conduction is known as electronic conduction. Simple. Now, to study about the conduction, first of all we will study about the resistance. Resistance has a symbol R. Okay, and we know that its unit, इसका यूनिट क्या है? सिंबल इज आर, इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है ओम, और सिंबल है, यूनिट का सिंबल है ओमेगा. जैसे सेकंड का सिर्फ एस, एम्पियर का कैपिटल ए, सिमिलरली रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम और ओम का सिंबल है ओमेगा. ओके, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट can measure this resistance? This instrument is known as Wheatstone bridge.
Okay, Western bridge can measure how much resistance is there. Okay, and now most important thing, this resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional area. Again, L is the length of wire and A is a cross area of cross section. ओके चलो प्रोपोर्शन की साइन हम रिमूव करते हैं तो फिर हमें कांस्टेंट लिखना है. तो जनरली विच कांस्टेंट इज रिटन, दैट इज रो. तो याद रखने की ट्रिक, रोला आर इक्वल्स रोला रो एल बाय ए. सो दिस इज अवर formula. Okay, R resistance, rho is known as proportionality constant and in actual it's resistivity और specific resistance. इसके लिए दो वर्ड है. Again, R equals rho into L by A. Rho is a resistivity or specific resistance. L is the length and A is the area of cross section. Which instrument is used? It's a Western bridge. उसका यूनिट क्या है और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओमेगा. और नाम क्या है? ओम. ओके, ओके, सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस. नेक्स्ट पार्ट, ओके, हाँ, देयर इज वन थिंग. Okay students, the important thing is now the SI unit of R resistance, that is kilogram meter square per second cube into ampere square. Okay, means kilogram meter square S minus 3 and A minus 2. Okay, remember this. जस्ट आपको ये याद रखना है. इसका एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में आता है तो अभी इसका हम डिस्कशन नहीं कर रहे और चलेगा, सिर्फ यही दिया है. ओके, नाउ सो रेजिस्टेंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ना, इतना आपको याद रखना है. यूनिट, इंस्ट्रूमेंट, एसआई यूनिट, फिर R is directly proportional to L, inversely proportional to A, then R equals rho into L by A, that is resistivity और specific resistance. चलो अब इसकी बारी, resistivity की बारी. So next part is resistivity. Resistivity का सिंबल था rho. फॉर्मूला क्या था? R equals rho into L by A. Now make a subject to rho, so it will be R into A by L. Okay, rho is a one type of R. Again, this rho is a specific resistance. It's a one type of R. ये एक R ही है, but rho equals R is possible when we take A as a unit and L as a unit. L क्या था? Length. चलो सपोज लेंथ हम ले लेते हैं 1 मीटर, तो ए, कैपिटल ए क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया. तो इट मस्ट बी 1 मीटर स्क्वायर. सपोज वी हैव टेकन वन वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर. सो एट दैट टाइम बोथ ऑफ द टर्म्स आर यूनिट. एट दैट टाइम दिस रो इक्वल्स आर. ओके, सो इट्स definition is unit length is 1 meter and unit cross sectional area is 1 meter square,
and at that time the resistance is known as rho. चलो इसका यूनिट डिराइव करते हैं. यूनिट क्या होगा रो का? तो रो का यूनिट क्या होगा? ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, सो ओम इंटू मीटर. स्मॉल स्केल लेते हैं तो फिर ओम इंटू सेंटीमीटर. What is the relation between ohm into meter and ohm into centimeter? So for that, students, we know that 1 meter equals 100 centimeter. Okay, that means 1 ohm into meter, that is 100 ohm into centimeter. Simple. Again, 1 centimeter equals how much meter? So we know that 0.01, that is 10 raised to minus 2. So that 1 ohm into centimeter equals 0.01 ohm into meter. Remember this. Okay, चलो नेक्स्ट. ये यूनिट कन्वर्जन में ये काम लगेगा हमें. सो दिस इज अवर रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस का सिंबल है G, and G is a reciprocal of okay, that is inverse of R, means G is 1 by R. अब R इक्वल्स क्या था? सॉरी हाँ, R इक्वल्स क्या था? रो इंटू एल बाय ए. तो 1 अपॉन रो इंटू एल, 1 अपॉन एल बाय ए, दैट विल बी ए बाय एल. ओके, एंड 1 बाय रो को हम अब नया सिंबल देंगे, ग्रीक लेटर. के नहीं है, इट्स अ कप्पा, बट इट इज रिटन लाइक के. जैसा हमें पता है ना, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है ए बी, वैसे ही ये ग्रीक लेटर्स है. तो इसमें बोलते हम, लिखते हम के, लेकिन बोलेंगे हम कप्पा. ओके, सो जी इक्वल्स ए बाय एल. चलो यूनिट क्या होगा? इट्स 1 बाय आर, दैट मीन्स 1 बाय ओम, मीन्स ओम इनवर्स. सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो ओमेगा इनवर्स. अब ओम इनवर्स के लिए वर्ड है मॉ, या तो फिर उल्टा ओमेगा. मतलब 4 यूनिट्स हुए इसके टोटल. तो याद रखो, दिस इज अवर कंडक्टेंस. ओके, चलो अब नेक्स्ट पार्ट है अपना ये जो कप्पा है ना. कप्पा को हम, जैसे हम देखो, ये आर था रेजिस्टेंस, और रो को हमने बताया क्या? रेजिस्टिविटी. सिमिलरली जी इज अ कंडक्टेंस एंड दिस के इज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसके लिए वर्ड है कंडक्टिविटी. तो इसके लिए वर्ड आपको याद रखना है, इट इज कंडक्टिविटी. ओके, हाँ. अब कंडक्टेंस का ये जो सब यूनिट्स है, ये नॉर्मल यूनिट्स है. इसका ऐसा ही यूनिट है सीमेंस, दैट इज कैपिटल एस. तो ये याद रखो. ओके, सीमेंस कैपिटल एस. एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, जैसे 4 पॉइंट्स हुए ना अपना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, then conductivity. Now we are starting conductivity. Next one is conductivity. और उसका सिंबल है कप्पा. चलो, कप्पा इक्वल्स क्या होगा? 1 अपॉन रो, तो वो तुमने बोल ही दिया. लेकिन यहाँ पे हम कप्पा को सब्जेक्ट बना दिया, जैसे हमने यहाँ पे रो को सब्जेक्ट बनाया था ना. सिमिलरली नाउ वी आर मेकिंग कप्पा एज अ सब्जेक्ट. सो कप्पा इक्वल्स जी इंटू एल बाय ए. व्हाट इज जी? जी इज अ कंडक्टेंस. अब एल बाय ए को हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट. ओके, तो ये हम लेंगे अभी अलग से एक पॉइंट, एज अ पॉइंट.
सेल कांस्टेंट। ओके, और जी क्या है? कंडक्टेंस। चलो यूनिट क्या होगा इसका? ऑफ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, वो तो आपको पता चल गया होगा। K is one type of G when length is 1 meter and area is 1 meter square, then such wire has a conductivity, conductance is known as specific conductance और conductivity। यूनिट क्या होगा? चलो G का यूनिट क्या है? इट्स ओम इनवर्स और मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, सो मीटर इनवर्स, या तो फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलो 4 यूनिट्स। बाकी के 2 यूनिट क्या होंगे? मो मीटर इनवर्स और मो सेंटीमीटर इनवर्स। वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ओम दैट इज OHM और मो दैट इज MHO, लाइक दिस। ओके, चलो वो भी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वो तो समझ में आ जाता है। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? तो यहाँ पे मो या तो फिर ओम इनवर्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं? एस, सीमेंस। तो इसके भी 2 ऐसा यूनिट्स होंगे, सीमेंस मीटर इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये ऑब्लिक है, मतलब अलग सेपरेट लाइन है। ओके, मतलब डिवाइडेशन के हिसाब से आपको नहीं लर्न करना है, ये इतना ध्यान रखना। तो सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। स्टूडेंट्स, अब इसके बेस पे एमसीक्यू कैसे पूछते हैं, चलो वो देखते हैं। सपोज यू आर गिवन 10 सीमेंस मीटर इनवर्स, देन हाउ मच सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स? तो ध्यान से देखना, इनवर्स का मतलब है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। चलो मीटर के जगह पे हमें क्या चाहिए? सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 मीटर इक्वल्स हाउ मच सेंटीमीटर? सो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। चलो 1 0 गया, इट इज 1/10 सीमेंस एज इट इज, सीमेंस एज इट इज। तो 1/10 सीमेंस पर सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा? ओके, सो इट इज 0.1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये याद रखो। सिमिलरली उल्टा पूछ सकते हैं कभी, बराबर। फॉर एग्जाम्पल 0.9 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स डैश सीमेंस मीटर इनवर्स। चलो 0.9 सीमेंस पर सेंटीमीटर। सेंटी मतलब 10⁻², याद होगा अपना 11th। सेंटी मीन्स 10⁻² मीटर, -2 पर गए, +2। ओके, तो 100 इंटू 0.9 दैट इज 90, सो 90 सीमेंस अपॉन मीटर। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया 90, इजी। तो चलो कुछ नहीं था, टाइम पास ही था, लेकिन ध्यान रखना है आपको। तो इसका यूज आएगा न्यूमेरिकल्स में। समटाइम्स यू विल बी गिवन दिस and remaining terms will be in centimeter, CGS unit, and here it is MKS unit। तो उस टाइम पे ये कन्वर्जन में अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, तो चलो ये ध्यान रखो अभी। ओके, तो स्टूडेंट्स टोटल 4 पॉइंट्स अपने मेन खत्म हुए। चलो अब एक छोटा पॉइंट मैंने बताया था अभी लेना था, वो है दैट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, उसका सिंबल है L/A। ये जो सेल कांस्टेंट है, ये सेल कांस्टेंट वो हम कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए एक कंपाउंड है दैट इज अ KCl, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन मस्ट बी नोन। ओके, और टेबल एक दिया है, टेबल में आपको क्या देंगे कि अगर आपने ये और उसमें 0.1 या तो फिर 0.01 या तो फिर 0.001, तो उस टाइम पे आपको ये देंगे। अगर आपको G वैल्यू ये मिल रही है तो उस टाइम पे, जस्ट मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। G की वैल्यू ये दी है तो फिर आपको कप्पा की वैल्यू ये लेनी है। अगर G इतनी आती है तो वैल्यू ये आती है, उस हिसाब से पूरा एक टेबल दिया होता है। 0.01 अगर ये कंसंट्रेशन लिया है तो अगर G की वैल्यू आपको ये मिल रही है तो फिर कप्पा आपको ये लेना है, मतलब सॉरी L/A आपको ये लेना है। तो सेल कांस्टेंट है ये L/A। ओके, तो चलो, तो इसका कंसंट्रेशन इस नॉन कंसंट्रेशन होना चाहिए,
तो जी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो फिर एल बाई ए आप डिटरमाइन कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वन इज इसका यूनिट। तो चलो बोलो यूनिट क्या होगा, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट इज मीटर इनवर्स या तो फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कन्वर्जन मेन है, जब भी आपको रिक्वायर्ड होगी तो CGS या IMKS तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जब न्यूमेरिकल आएंगे तब आपको दिखा दूंगा, तो अब तो आपको पता तो होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या है। सिमिलरली न्यूमेरिकल्स के लिए इन सबके यूनिट्स और कन्वर्जन्स तो ये तो पता होने ही चाहिए। ओके, एंड नाउ लास्ट टू फॉर्मूला। फर्स्ट इज अ मोलर कंडक्टिविटी। इसका सिंबल है लैम्बडा एम। स्टूडेंट्स ये जो है ना उल्टा V, इट्स अ कैपिटल लैम्बडा। ओके, आपने तो एक ही लैम्बडा पढ़ा है, वेवलेंथ, इट्स अ स्मॉल, इट्स अ कैपिटल लैम्बडा। और लैम्बडा एम का फॉर्मूला है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी, और इसका यूनिट है मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ओके, अब कप्पा इक्वल्स क्या है, G इंटू एल बाई ए। वैल्यू पुट डाउन करो, तो 1000 इंटू G इंटू एल बाई ए अपॉन मोलारिटी। ओके, चलो G इक्वल्स क्या है, 1 अपॉन R। तो अब तक के जितने भी फॉर्मूला है ना सब यहाँ पे पुट डाउन हो गए, समझ में आ गया होगा। R इंटू मोलारिटी, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करो, जिसके जब जब जो भी फॉर्मूला होगा आप एक ही याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखो, और G इक्वल्स 1 बार R वो याद रखो, खत्म बात। सेकेंड वन इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और उसका सिंबल है लैम्बडा EQ। M टेंड्स टू मोलर कंडक्टिविटी, EQ मींस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो लैम्बडा EQ इक्वल्स फॉर्मूला क्या है, 1000 इंटू कप्पा। अगर मोलारिटी है तो फिर मोलर कंडक्टिविटी। अगर हमने नॉर्मालिटी कंसिडर किया देन इट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और यूनिट क्या होगा, मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, एवरी डे 1 टाइम एंड मिनिमम 4 टाइम्स, मैक्सिमम एज यू वांट। ओके, ये आपको लिखना है और लर्न करना है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए हर एक पार्ट एमसीक्यू के लिए फॉर्मूला, यूनिट सब। ओके, टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स के हिसाब से दिया है मैंने यहाँ पे क्या किया है, सब पार्ट एज अ छोटे छोटे सब पार्ट्स मैंने करवा दिए अलग अलग से विथ कन्वर्जन्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर वैसे कंप्लीट हुआ, ये अच्छी तरह से आप लर्न करो। ओके, तो ये लर्न आपको करना है। सो ओवरऑल आवर लेक्चर इज completed now.